Hello friends, welcome to Unacademy GATE MEPIXC. This is Aprup Rao and you are watching Concepts in Minutes, and in this video we are going to discuss the difference between truss and frames. In a lot of books you will find these two terms used interchangeably, but they don't mean the same thing. Technically there is a difference, there is a huge difference between truss and frames. The analysis of truss and frames is completely different from each other. बेटा टेक्निकली ट्रस और फ्रेम्स दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, बट कई सारी बुक्स में, खासकर की इंडियन ऑथर्स की बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ट्रस और फ्रेम्स को वो एक ही वर्ड्स से कॉल कर लेते हैं, ट्रस और फ्रेम्स के लिए एक ही वर्ड यूज कर लेते हैं, बट ये गलत है. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस, द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड फ्रेम्स. Now, if you are watching me for the first time, let me introduce myself. My name is Aprup Rao, All India Rank 320 in Gate Mechanical, MTech from IIT Kharagpur, and my specialization was design. In my final year, I was recruited by Mahindra & Mahindra, and I was placed at Mahindra Research Valley, where I worked in the field of design of cars for 2 years. Then I decided to quit my job and I started teaching. So I've been teaching for more than 2 years now, and I teach subjects related to design. Strength of materials, engineering mechanics, theory of machines and machine design. Now let's understand the difference between truss and frames. तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसी लाइन खींच देता हूं बीच में, जो हम यूजुअली यूज करते हैं डिफरेंस लिखने के लिए. So let's write truss on this side, frames on this side, and let's one by one see what exactly is the difference between them. Okay, so let me take an example of a truss and a frame. ठीक है, truss और frame का एक example ले लेते हैं. Can anyone tell me what this exactly is? क्या कोई बता सकता है कि ये क्या है? Whether it is a truss or whether it is a frame. If you are wondering whether it is a truss or a frame, there is a very easy way to find out. If the load is acting only at the ends, not in between, then it is a truss. अगर लोड जो है वो एंड पे लग रहा है, बीच में कहीं पे, बीच में का मतलब if it is acting here or here or here or here, then it will be a frame, not a truss. So this exactly is a truss. अब अगर आप देखोगे कि frame क्या है, then let me give you an example of frames also. मैं सबसे सिंपल वाला एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं, ओनली 2-3 मेंबर्स. ओके, ज्यादा मेंबर्स में यहां बना नहीं रहा हूं ताकि हम लोग अच्छी तरह से डिफरेंस को समझ सकें. नाउ व्हाट दिस इज, this exactly is a frame. अब ये फ्रेम क्यों है? Because the load is acting on the member, not only on the joints. सिर्फ joints पे नहीं लग रहा है, लोड जो है वो मेंबर पे लग रहा है. ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इज दिस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ट्रस एंड फ्रेम? तो बेटा इसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं. तो एक एक करके हम सारे डिफरेंसेस से डील करने वाले हैं. ठीक है, अब सबसे पहला डिफरेंस क्या लूंगा मैं? द फर्स्ट डिफरेंस दैट आई एम गोइंग टू राइट इज, in case of truss you will find that the members are only connected at the ends. ट्रस के केस में मेंबर्स जो है वो सिर्फ एंड्स पे कनेक्टेड हैं.
इस एंड पे, इस एंड पे, इस एंड पे। क्या आप यहां पे देख रहे हो कि मेंबर्स एंड्स के अलावा बीच में कहीं पे कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ कनेक्शन हो? नहीं। यहां पे ए बी बी सी ए सी तीन मेंबर्स हैं और तीनों एक दूसरे से सिर्फ एंड्स पे कनेक्टेड है। अब आप बोलोगे सर यहां पे भी तो वही हो रहा है, तो नहीं मेरे भाई, यहां वो नहीं हो रहा है। यहां पे भी ए बी सी डी और ए सी तीन मेंबर्स हैं, लेकिन यहां पे जो ए बी और सी डी मेंबर है, दीज टू आर कनेक्टेड एट दिस जॉइंट ऑल्सो। तो इसका मतलब कि फ्रेम के मेंबर्स एंड के अलावा बीच में भी कनेक्टेड होते हैं। सो लेट मी राइट द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड फ्रेम्स। मेंबर्स आर connected only at ends. Members are connected at ends and या और in between ends। ठीक है, एंड्स के अलावा इन बिटवीन एंड्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दैट इन केस ऑफ ट्रस लोड इज अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट, बट इन केस ऑफ फ्रेम्स लोड कैन बी अप्लाइड एट द एंड्स एज वेल एज एट द जॉइंट्स। लोड एक्ट्स ओनली एट joints, load acts at joints and या और on members। मतलब कि लोड जॉइंट पे भी लग सकता है, लोड मेंबर पे भी लग सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी वजह से डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है। अगर लोड जॉइंट पे लगे या मेंबर पे लगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इफ द लोड एक्ट्स एट द जॉइंट्स, अगर लोड जॉइंट्स पे एक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से होगा क्या, अंडरस्टैंड। मैं इसको लाइन से, एक लाइन से शो करता हूं, ठीक है। मैं इन मेंबर्स को एक लाइन से शो करता हूं। तो ए बी ए सी बी सी तीन मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर लोड सिर्फ जॉइंट पे लग रहा है तो इसकी वजह से मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड डेवलप हो सकता है। अब वो एक्सियल लोड टेंसाइल भी हो सकता है, वो एक्सियल लोड कंप्रेसिव भी हो सकता है, बट जो भी लोड डेवलप होगा इट विल बी ओनली एक्सियल लोड। इन केस ऑफ ट्रस के केस में मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या डेवलप होता है मेरे भाई, एक्सियल लोड डेवलप होता है। लेकिन फ्रेम्स के केस में लोड कैन बी एक्सियल लोड एज वेल एज ट्रांसवर्स लोड। अब फ्रेम्स के केस में एक्सियल लोड के साथ साथ ट्रांसवर्स लोड भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एसी मेंबर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस एसी मेंबर, अगर मैं एसी मेंबर की बात करूं तो इस पे लोड किस टाइप से लग रहा है, देखो यहां पे लोड लग रहा है W, ठीक है। अब देखो यहां पे ए और सी दोनों एंड्स पे पिन जॉइंट है, ठीक है। तो इन पिन जॉइंट्स पे देयर विल बी अ फोर्स इन X, देयर विल आल्सो बी फोर्स इन Y। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसको मैं लिख लेता हूं AX AY CX CY। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मेंबर पे एक्सियल लोड के साथ साथ क्या आ रहा है, ट्रांसवर्स लोड भी आ रहा है। यानी कि इस मेंबर में टेंशन और कंप्रेशन के साथ साथ बेंडिंग भी हो रही है। ट्रस के मेंबर्स में क्या होगा बेटा, सिर्फ एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, बेंडिंग नहीं होगी, ओके। बट इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ फ्रेम्स देयर कैन बी
टेंशन एंड कंप्रेशन, एलोंगेशन कंप्रेशन, देयर कैन बी बेंडिंग। यहां पे देखो, यहां पे बेंडिंग होगी ना, इस केस में देयर विल बी बेंडिंग लाइक दिस, है कि नहीं? तो बेटा ट्रस के मेंबर्स में कोई बेंडिंग नहीं होती, दे आर सब्जेक्टेड टू ओनली एक्सियल लोड, बट फ्रेम मेंबर्स कैन बी सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स एज वेल एज एक्सियल लोड। ओके, तो ये चौथा डिफरेंस क्रिएट हो गया। सॉरी, तीसरा क्रिएट हो गया, मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू only axial loads members are subjected to axial and or ट्रांसवर्स लोड्स। ठीक है, तो बेटा ट्रस और फ्रेम दोनों का एनालिसिस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अब आप पूछोगे सर डिफरेंस कैसे होता है, दोनों में तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही लगाते हैं, तो दोनों में फर्क क्या होता है? इन केस ऑफ ट्रस आप मेंबर्स का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाते, आप जॉइंट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, राइट? अगर आपको ट्रस के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, इफ यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रसेस, देन यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द जॉइंट्स। आप ए जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, बी का बनाओगे, सी का बनाओगे। लेकिन इफ यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रेम्स, देन यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ द मेंबर्स एज वेल। आप मेंबर्स का भी फ्री बॉडी डायग्राम आप मेंबर्स का ही बनाते हो, जॉइंट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना के यहां सॉल्व नहीं होगा। यू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ मेंबर्स, तो आप एसी मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, AB मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, CD मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो यहां डिफरेंस ये क्रिएट हो जाता है एनालिसिस में। इन केस ऑफ ट्रस आप जॉइंट्स का एफबीडी बनाते हो और सॉल्व करते हो, इन केस ऑफ फ्रेम्स आप हर एक मेंबर का अलग एफबीडी बनाते हो और सॉल्व करते हो। ओके, अब आपको अगर ट्रस और फ्रेम्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, देखना है एग्जैक्टली दोनों के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो आपको मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स देखना पड़ेगा। यू विल फाइंड एंटायर लेक्चर्स ऑफ ट्रस एज वेल एज फ्रेम्स। ओके, तो बेटा दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड फ्रेम। एक बार फिर गो थ्रू कर लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट डिफरेंस क्या है? मेंबर्स ऑफ ट्रस आर कनेक्टेड ओनली एट द एंड्स, नॉट इन बिटवीन द एंड्स, but in case of frames the members are connected at the ends as well as in between the ends. Second difference is load acts only at the joints. यहाँ पे load सिर्फ joint पे act करता है, but यहाँ load जो है वो joint पे भी act कर सकता है, बीच में भी act कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ joint पे act करे। Okay, and the third difference is members are subjected to only axial load. In case of truss members are subjected to only axial load. अब इसका रीजन अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, तो ये सेकंड वाला पॉइंट ही थर्ड वाले पॉइंट का रीजन है। ओके, यहां पे लोड सिर्फ जॉइंट्स पे लग रहा है। देखो किसी भी मेंबर पे अगर लोड सिर्फ जॉइंट पे लगेगा तो उस मेंबर में सिर्फ एक्सियल लोड डेवलप होगा, उस मेंबर में ट्रांसवर्स लोड डेवलप नहीं होगा। ठीक है, यहां पे AB AC BC में ट्रांसवर्स लोड आ ही नहीं सकता, सिर्फ एक्सियल लोड आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मेंबर पे ट्रांसवर्स बीच में लोड लगता है तो उससे ट्रांसवर्स लोड डेवलप हो जाता है। यानी कि देख रहे हो ये AY CY W ये तीनों ट्रांसवर्स लोड है ना, तो अगर ये लोड जो W है ये A पे लग रहा होता, A जॉइंट पे लग रहा होता, तो फिर ये ट्रांसवर्स लोड डेवलप नहीं होता। लेकिन जॉइंट्स पे ना लग के अगर बीच में कहीं लगता है तो मेंबर में क्या डेवलप हो जाता है? एक्सियल लोड के साथ ट्रांसवर्स लोड डेवलप हो जाता है। ठीक है, सो ये जो थर्ड पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट की वजह से ही आ रहा है। ओके, तो अगर आपको और डिटेल में जानना है ट्रस और फ्रेम्स के बारे में तो आप मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा कोर्स देख सकते हैं। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये एक लिंक खोल लो tinyurl.com/approved10, just go to any web browser and type tinyurl.com/approved10, enter and you will find all my free lectures one by one। आप इस पेज को खोल लोगे जहां आपको सारे फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे और उनके नोट्स भी मिल जाएंगे, बने बनाए रेडीमेड PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको इवन नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगर आपको मेरे अपकमिंग लेक्चर्स के बारे में जानना है, इफ यू वांट टू नो अबाउट माय अपकमिंग लेक्चर्स,
then just follow this Telegram channel. Go to Telegram app and search Approve 10. Follow my Telegram channel. I regularly update this Telegram channel. I update the links and notifications of all my classes. तो ये सारी चीजें मैं पर्सनल लेवल पे ही ऑब्जर्व करता हूं, पर्सनल लेवल पे ही इन सबका अपडेट करता हूं. ओके. और अगर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स में पढ़ना है हमारे साथ, देन टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. अगर आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं, देन यू विल गेट एवरीथिंग कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब. ओके. आपको सिर्फ लेक्चर्स चाहिए तो वो आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगे यूट्यूब पे. लेकिन अगर लेक्चर के बियॉन्ड चीजें चाहिए, लेक्चर के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, वो चाहिए, तो फिर आपको अनअकैडमी प्लस पे आना पड़ेगा. अब लेक्चर के अलावा क्या है मेरे भाई? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वीकली क्विजेज हैं, डेली असाइनमेंट्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, डाउट क्लियरिंग सेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. बिना डाउट पूछे आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा. तो डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, अनअकैडमी प्लस पे मिलेगा. पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, नोट्स मिलेंगे हर क्लास के बाद, आप लोग क्लासरूम लाइक एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको मल्टीपल बैचेस मिलेंगे, मल्टीपल एजुकेटर्स मिलेंगे. तो यहाँ आप चूज कर सकते हो कि आप किस एजुकेटर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आप किस बैच में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो. मल्टीपल बैचेस हैं, गेट के लिए, ईएससी के लिए, पीएसयूज के लिए अलग अलग बैचेस हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, फुल कोर्सेज हैं, प्रॉब्लम्स के कोर्सेज हैं, डाउट क्लियरिंग के अलग कोर्सेज हैं. तो बहुत सारे कोर्सेज हैं अलग अलग, और आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से कोर्स में पढ़ाई स्टार्ट करनी है. ओके. तो बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपना एजुकेटर, अपनी बैच, अपना कोर्स खुद बना सकते हो. ओके. तो अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 ईयर, 1.5 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान ये रहा. और अगर आप ये कोड यूज करते हो अप्रूव 10 तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है. और साथ में अगर आप ये रेफरल कोड यूज कर रहे हो, मतलब आप मेरे रेफरल से अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रहे हो, मेरे रेफरल से अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रहे हो, मतलब मुझ पे भरोसा करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रहे हो, तो बेटा मेरी जिम्मेदारी बनती है, आई विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आपको पूरा गाइडेंस देना, मेंटर करना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. ओके. और ये आप ईएमआई पे भी ले सकते हो बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के. और अगर आप पर डे कॉस्ट एनालिसिस करो तो आपको ये पड़ता है मात्र 54 रुपीज पर डे में, ये पड़ता है मात्र 64 रुपीज पर डे में, और ये पड़ता है मात्र 74 रुपीज पर डे में. तो इतनी कम कीमत पे यू कैन टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. आप कंपेयर करो तो बेटा ये किसी लोकल कोचिंग के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से भी कम है. अगर आप कोई लोकल कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में बस से जाओ, ऑटो से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, इससे ज्यादा ही पैसे लगते हैं, राइट. तो बेटा उससे भी कम कॉस्ट में आप डेली बेसिस पे अनलिमिटेड लेक्चर्स, अनलिमिटेड बैचेस में पढ़ सकते हो. दैट इज द पावर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस बाय अनअकैडमी. ओके. अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, प्लस को ना लेके अनअकैडमी आइकॉनिक ले सकते हो, 1 ईयर या 2 ईयर का. अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यू गेट अ पर्सनल कोच. आपको एक पर्सनल कोच मिलता है जो आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प करता है. ही मेक्स स्टडी प्लान्स फॉर यू, ही मेक्स श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दैट स्टडी प्लान्स. आपके टेस्ट का एनालिसिस करना, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, ऑल ऑफ दैट विल बी टेकन केयर बाय योर पर्सनल गाइड, योर पर्सनल कोच. ओके. सो बेटा यू कैन टेक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड अप्रूव 10. तो बेटा जाने से पहले हिट द लाइक बटन, शेयर द लिंक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. और अगर आपके मन में कोई ऐसा आइडिया है, इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट एनी कॉन्सेप्ट, इफ यू वांट टू नो द फिजिकल मीनिंग, एप्लीकेशन ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक श्योर कि उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊं. ओके. So beta, thank you so much for joining. I will see you in some other video, some other lecture. Till then, bye bye. Take care.